آئیے کلام مقدس کی طرف دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب۔ خدا کا کلام آج ہم ایک بادشاہ کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن انجیل میں ہم چلیں گے اور دوسری انجیل ہے مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ کوئی بھی پڑھنے والا ہماری کرے۔ ورس 29، مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو یعنی یسوع نے ان کو خوب جواب دیا۔ وہ پاس آیا وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا، یسوع سے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول کون سا ہے؟ ایک شخص مسیح خداوند کے پاس آتا ہے اور وہ یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ اتنے سارے حکم ہیں، وہ سارے حکموں میں سے اول پہلے نمبر پر کون سا حکم ہے؟ تو یسوع مسیح نے اسے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ 30ویں آیت، اور تو خداوند اپنے خدا سے، یسوع مسیح نے اسے یہ جواب دیا کہ حکم یہ ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، کیا رکھ؟ محبت۔ آمین۔ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے اور وہ یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ اتنے حکم ہیں، ان تمام حکموں میں سے سب سے پہلا اول سب سے اہم حکم کون سا ہے؟ تو یسوع مسیح ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کہا ہمارا خداوند ایک خدا۔ کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی خدا ہے۔ سن اسرائیل، کوئی اور خدا نہیں ہے، 2 یا 3 خدا نہیں ہے۔ کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی خدا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بات جو مسیح خداوند نے شیئر کی اور کہا کہ اپنے سارے کتنے دل، کتنے؟ ایک ہی دل ہے، اپنے سارے دل سے، اور دوسری بات ساری عقل سے، ساری طاقت سے، 4 چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔ ان 4 چیزوں کو ایک کر کے اور کہا کہ خدا سے کیا کرنی ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ یہاں پر لفظ جو سارا آیا ہے نا، سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے، ساری طاقت سے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سمجھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں بھی بیٹھ کر ہم پورے طور پہ خدا کے گھر میں نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سب ٹائم ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا، سب ٹائم ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سڈنلی ذہن کہیں اور چلا گیا، کسی بات کی طرف، کسی گھر کی طرف، کسی شہر کی طرف، یا کسی معاملے کے اوپر دماغ چلا گیا، تو یہ اس معاملے میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یسوع مسیح نے جو جواب دیا ہے کہ اپنے سارے دل، ساری جان اور ساری عقل، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ اور یہ باتیں صرف نئے عہد نامہ میں نہیں آئی، اس کو ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں گے، ایک بادشاہ کی سٹوری کے ساتھ۔ آئیے دوسرا ساتھ دیں۔ جب راجہ مہاراجاؤں کا دور چل رہا تھا
जब सल्तनत का दौर था, उस दौर में चलते हैं दूसरा सलातीन और उसका 22वां बाब है। दूसरा सलातीन उसका 22वां बाब और उसकी दूसरी आयत से, ये पहली आयत से पढ़े बेटा। जब यूसिया सल्तनत करने लगा, एक बादशाह है और जब ये बादशाह सल्तनत करने लगा तो 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8 वर्ष। 8 वर्ष का बच्चा भी छोटा भी बादशाह कर सकता है। लेकिन इसके बारे में लिखा है, ये इसके बारे में नहीं, पीछे कुछ और भी बादशाह है जो ऐसे जो 7 वर्ष की उम्र में बादशाह शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन इसके हक में लिखा है जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो वो कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का। बोले दूसरी आयत से कहना, उसने वो काम किया, बादशाह ने वो काम किया जो खुदावन की निगाह में, जो सबसे पहले किसकी निगाह में? खुदावन की। अब ये बादशाह ये 8 साल की उम्र में, अब ये बड़ा हो गया है। अब इसने क्या किया कि लिखा है इस बादशाह ने वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक ना मुड़ा। आगे और यूसिया बादशाह के 18वें वर्ष जी ऐसा हुआ। अब इस बादशाह के 18वें वर्ष जब ये सल्तनत बढ़ी आगे तो फिर क्या हुआ? बादशाह ने साफिन बिन मुस्लान मुंशी को खुदावंद के घर को भेजा और कहा। अब ये यूसिया बादशाह है और ये याद रखें ये यहूदा का बादशाह है। जब सल्तनत 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई तो ये यहूदा का जो बादशाह है, दाऊद बादशाह के बाद दाऊद का बेटा कौन बादशाह बना? सुलेमान बादशाह बना। और उसके बाद फिर जो सल्तनत है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई और यहूदा की जो सल्तनत है उन्हीं में से ये बादशाह चला आ रहा है। अब जानते हैं कि हैकल किसी ने बनवाई थी। हैकल किसने बनवाई थी? सुलेमान बादशाह ने। और ये सुलेमान बादशाह की एक नस्ल में से आ रहा है, ये उसी में से है। तो हुआ क्या? इसका एक बादशाह का एक मुंशी है। जी बेटा पढ़े, इसने क्या किया? कि तू खलकिया सरदार कायम के पास जा। इस बादशाह ने अपने इस मुंशी को कहा कि खुदावंद के घर को जा। बादशाह ने मुंशी को भेजा कि तू खुदावंद के घर में, उस घर में जो मेरे बाप दादा ने बनवाई थी, यानी सुलेमान बादशाह ने बनवाई थी। अब ये अपने मुंशी को वहां पर भेजता है जी और कहा कि तू खलकिया सरदार काहिन के पास जा ताकि वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा शोर करता हूँ। अब बादशाह ने, यूसिया बादशाह ने अपने सेक्रेटरी को, अपने मुंशी को हैकल में भेजा। हैकल में इसलिए भेजा क्योंकि हैकल को बने हुए बड़े साल गुजर गए थे। हैकल को बने हुए बड़े साल गुजर गए थे, काफी वक्त हो गया था हैकल को बने हुए। तो हुआ क्या? हैकल के अंदर दरारें पड़ गई। हैकल बनी हुई थी और वो कई कई जगह पर ऐसे वो दरारें नजर आती थी कि ये थोड़ी दरार आ गई है। तो इसने, बादशाह ने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत करवाऊं। जो दरार पड़ गई है इसकी क्या करवाऊं? मरम्मत। तो बादशाह ने अपने मुंशी को हैकल में भेजा काहिन के पास। जब वो काहिन के पास जाता है तो जाते वो पहुंचता है हैकल में और बहुत सारी बातें भी उनसे होती हैं और कहा कि ऐसा कर लो, पैसे जो जमा हुए हैं वो ये काम कर लो। ये जो सारी बातें हो गई तो 8वीं आयत में कुछ लिखा है, और सरदार काहिन हल्किय्याह ने साफिन मुंशी से कहा, इस काहिन में जब ये मुंशी यहाँ पर हैकल में पहुंच गया तो काहिन से मिला। फिर काहिन ने मुंशी से कुछ कहा, मुझे हैकल से, वो हैकल जो सुलेमानी हैकल कहलाती है, खुदावंद के घर से तौरात की क्या मिली है? किताब मिली है। मुझे एक किताब मिली है।
اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کاہن کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ منشی کو کہہ رہا ہے. یہ منشی کس نے بھیجا؟ یہ بادشاہ نے بھیجا. اب یہ کاہن نے جب منشی سے کہا کہ مجھے ایک توریت کی کتاب ملی ہے تو اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی. اب یہ جو کتاب ہے یہ یہاں پر پہنچی ہے منشی کے پاس آگے. اور اس نے اس کو پڑھا. اب ہوا کیا کہ جب کاہن کو ہیکل سے وہ کتاب ملی، کاہن نے دے دی کس کو؟ بچہ تو میری طرف دیکھے. کاہن نے کس کو دی؟ منشی کو دی. اب کاہن نے منشی کو سونپ دی ہے. کاہن کو ہیکل سے توریت کی کتاب ملی، وہ توریت کی کتاب بادشاہ کے منشی کو دے دی گئی. ہوا کیا آگے؟ اور اس نے وہ اس کو پڑھا جی. اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا. اب یہ جو منشی ہے یہ واپس بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے آگے. اور بادشاہ کو خبر دی بادشاہ کو یہ خبر دیتا ہے کہ تیرے خادموں نے جی وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھوں میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں. اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے. اب یہ منشی نے بادشاہ کو دوسری باتیں بتائی اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ مجھے سردار کاہن نے ایک کتاب سونپی ہے جو ہیکل سے ملی ہے. مجھے ایک کتاب سردار کاہن نے دی ہے جو ہیکل میں موجود تھی اور اس نے مجھے دی ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ جب بادشاہ تک بات پہنچی، وہ صافن جو منشی ہے اس کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے توریت کی. اور بادشاہ نے کیا کہا؟ جی. اور صافن نے اسے بادشاہ کی حضور پڑھا. اور بادشاہ نے کہا، بادشاہ کو یہ بھی پتا کہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے. اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور کیا کیا؟ پڑھا. اور بادشاہ نے منشی سے کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھ. یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ یہ جو ہیکل سے کتاب ملی ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اور جب اس نے اس چیز کو پڑھا تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 11ویں آیت. اور بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی. جب یہ بادشاہ نے منشی پڑھ رہا ہے، بادشاہ نے کہا تو پڑھ اس کو، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں. تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو بادشاہ نے جو سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے. بادشاہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ میرے ساتھ دیکھیں. منشی پڑھ رہا ہے، بادشاہ نے کہا کہ ریڈ کرو، پڑھو. جب اس نے وہ باتیں پڑھی تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے. یہ کیا بادشاہ نے ایسا سن لیا تھا؟ کیا ایسا منشی نے پڑھ لیا تھا کہ بادشاہ کو اپنے کپڑے پھاڑنے پڑ گئے؟ کیا ایسا ریزن ہے؟ اس کو جاننے کے لیے خروج کی کتاب اس کے 23 باب میں دیکھیں. خروج کی کتاب، خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، اس کی 24ویں آیت. خروج کی کتاب 23 باب اور اس کی 24ویں آیت. کیا بات جو ہے جو بادشاہ نے وہ سنی تو بادشاہ گھبرایا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. جی. تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا. تو ان کے معبودوں کو کیا نہ کرنا؟ سجدہ نہ کرنا. اب یہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ یہ ہیکل کے اندر جو کتاب ملی ہے یہ خدا نے موسیٰ کو لکھوائی تھی کہ جب تم اس ملک پہ جاؤ گے تو وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ بڑے ہوں گے بت پرستی میں، وہ بڑے ہوں گے جادوگری میں، وہ طرح طرح کے بتوں کی دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرتے ہوں گے. لیکن تو قوم بنی اسرائیل سے، میرے لوگوں سے یہ کہنا کہ تم نے وہاں پر مورتوں کو سجدہ نہیں کرنا اور غیر معبودوں کی عبادت بھی نہیں کرنی. یہ خدا نے تب موسیٰ کو لکھوائی اور یہ یہاں پر بادشاہ کو اب ملی ہے. بادشاہ نے ابھی سنی. جیسے یہ بات بادشاہ نے سنی اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. یہ پوری بات پڑھیں گے ہم. جی. تو ان کے
माबूदों को सजदा तू उनके माबूदों को क्या न करना, सजदा न करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, ना उनके से काम करना, बल्कि जी तू उनको बिल्कुल उलट देना, बल्कि जब तू उस मुल्क में जाए तो उनको क्या कर देना, बिल्कुल उलट बिल्कुल। एक होता ना थोड़ा, चलो थोड़ा सा उल्ट दे, नहीं, बिल्कुल पूरा। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा, सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से यहाँ पर लिखा है कि मूसा तू कौम पर ईश्वर को बताना कि जब तुम उस मुल्क के माउद में जाओगे तो वहां पर जाके सारी चीजों को उल्ट देना। आगे, और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े जो कर उनके सतून बने होंगे उनको क्या कर देना, टुकड़े 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 टुकड़े। किस्सा की किताब उसके 7 बाब की 5वीं आयत, 7 बाब की 5वीं आयत। बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना, खुदा ने मूसा को ये तमाम बातें लिखवाई थी जो यहाँ पर बादशाह के हाथ में ये बात पहुंची है, बादशाह तक पहुंची बात है। क्या पहुंची है? बल्कि तुम उनसे जब उस मुल्क में जाओ, उस प्रॉमिस लैंड में जाओ तो क्या करना, वहां पर तुम उनके साथ सलूक कैसा कैसा करना, ये बादशाह ने सुनना है। जी, उनके मजहबों को हटा सबसे देना, पहले उनके मजहबों को उठाना। किनको उठाना? जब तुम उस प्रॉमिस लैंड में, उस वादे की सरजमीन में पहुंचोगे ना, मूसा को ने बताना है कौम बनी इस्राइल को, सब लोगों को ऐलान करना है। जब वहां पर पहुंचो तो तुमने सबसे पहले उनके मजहबों को, क्योंकि वहां पर क्या है, बुद्ध बने हुए वहां पर लोग बुद्धों की प्रस्तिश करते हैं, बच्चों को ज़बह करते हैं, खून का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आगे जी बेटा पढ़े। उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना, दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देना, और उनकी यस्रीतों को काट डालना, और उनकी तराशी हुई मूर्तें आग में जला देना। उनकी तराशी हुई कौन सी मूर्तें? आपको याद होगा कि खुदा ने खुद तख्तियों के ऊपर कुछ लिखा था, उन 10 हुक्मों में से ये भी हुक्म था कि कोई तराशी हुई मूर्त, किसी भी तराशी हुई मूर्त को सजदा ना करना। ये हुक्म खुदा ने दे दिया था, ये हुक्म कलमबंद हो गए थे। आगे, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। देखो, तुम्हारा खुदा एक खुदा है, तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम हो। जब तुम प्रॉमिस लैंड में जाओगे, उस मुल्क में जाओगे, तो वहां पर जाकर होगा क्या? जब तुम जाओगे तो देखोगे वो क्या करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके रंग में डल जाओ कि वो मूर्तों की पूजा करते हैं, तुम भी शुरू कर दोगे। वो मूर्ति बनाते हैं, तुम भी शुरू कर दोगे। लेकिन जब तुम उस मुल्क में जाओ, सबसे पहले तुमने उनके मजहबों को ढाना है, जो मूर्ति बनाई है उनको ढाना है। ये तमाम बातें योशिया बादशाह ने सुन ली। काहिन ने मुंशी को कहा कि ये ले जा बादशाह के पास। बादशाह ने इससे कहा, जो तू लेके आया है तौरात की किताब वो मेरे सामने पढ़, क्योंकि ये किताब तो हैकल में थी, बादशाह ने नहीं पढ़ी थी। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो बादशाह ने कहा, ये तो बाप दादाओं से बात हुई है, मेरी तो पीछे नस्लों से ये बात हुई है कि जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उन सबको क्या करना है, ध्यान देना है। लेकिन यहां तो बहुत सारे मंदिर हैं, देवियों की मूर्तें बनी हुई हैं, देवताओं की मूर्तें बनी हुई हैं, मंदिर है, क्या करें? इस बादशाह ने रिएक्ट किया, एक्शन लिया, फौरन क्या किया? जी बेटा। क्योंकि
खुदा दोबारा वहीं पर आएंगे। दूसरा सलातीन, जब ये तमाम बातें उसने सुनी तो फिर दोबारा यहाँ पर दूसरे सलातीन के अंदर 22वें बाब में अब हुआ क्या? जब बादशाह ने तौरीत की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े जी, और बादशाह ने हल्किया काहिन और साफिर के बेटे अकिया और मिकाया के बेटे अकबूर और साफिर मुंशी और असाया को, जो बादशाह का मुलाजिम था, ये हुक्म दिया कि ये किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों को और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर इसी सबब से बढ़ता है। क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब, कितना बड़ा गज़ब हम पर क्या है? इसी सबब क्योंकि खुदा ने पीछे कहा था कि जितने मंदिर हैं, जितनी जो भी मूर्तें हैं, सबको क्या करना है, लेकिन नहीं खत्म हुई, नहीं ढाई गई, अभी भी है। तो इससे ये सारी बातें सुनी, इसने सबसे पहले अपने कपड़े फाड़े और तमाम यहूदा को क्या किया से जमा किया, और जमा करके इनको कहता क्या है? जी बेटा, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर इसी सबब से बढ़ता है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना, इस किताब की बातों को, क्योंकि ये हैकल में पड़ी हुई थी, तो मैंने नहीं सुनी, मेरे बाप ने भी नहीं सुनी हो, क्योंकि ये तब खुदा ने मूसा को कही थी कि तेरी नस्लें खत्म हो गई हैं, कि सब चीजों, तमाम चीजों को खत्म करना है। उसने जमा किए लोगों को और क्या कहा कि जो कुछ उसने हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करें। इसने किया क्या था? इसने किया क्या था बादशाह ने? इस बादशाह ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, लोगों को जमा किया, लोगों को जमा करके अब करता क्या है, इसी को थोड़ा सा आगे देखेंगे। जी बेटा, 15वीं आयत, उसने उनसे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, उसने उनसे कहा, इस्राएल का खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है, ये एक नबिया के पास बादशाह ने भेजा है, बादशाह ने कुछ लोगों को नबिया के पास भेजा है कि ये बातें मैंने पढ़ी हैं, ये बातें मैंने सुनी है, और क्या हो, हम पर गज़ब नाज़िल होने वाला है। और ये नबिया किस कहती है उन लोगों से, जी, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है, यदि बादशाह ने कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, उस बादशाह यूसिया बादशाह से कहना कि देख खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस किताब की जो तुझे मिली है उन सब बातों के मुताबिक, जी, जिनको शायद यहूदा ने पढ़ा है, इस मुकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर बला नाजिल करूंगा, जी, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क कर दिया और गैर माबूदों के आगे बखूर चलाया, ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाए, जी, सो मेरा कहर इस मुकाम पर भड़केगा और ठंडा ना होगा, जी, लेकिन शाह यहूदा ने जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। अब देखिए, खुदावंद इस्राएल का खुदा ने क्या किया कि भड़केगा, अज़ाब भड़केगा मस्त भी, और ठंडा नहीं होगा। लेकिन बादशाह ने पीछे कुछ किया, तो उस वजह से खुदा ने अब क्या किया, जी, जो बातें तूने सुनी है, जो बातें तूने सुनी है, उनके बारे में ये है कि चूंकि तेरा दिल चूंकि बादशाह तेरा दिल नरम है, तेरा दिल, किसका दिल? बादशाह बादशाह का दिल नरम है। जैसे ही बादशाह ने ये तमाम बातें सुनी कि खुदा ने तो कहा था कि सब कुछ खत्म कर देना है, क्योंकि बादशाह तेरा दिल क्या है? नरम है। उसने सबसे पहले अपने कपड़े फाड़े, और इस नरम दिल की वजह से क्या हुआ? और जब तूने वो बात सुनी, जी, जो मैं इस मुकाम और
इसके बाशिंदों के हक में कहीं कि वो तबाह हो जाएंगे जी और लानती भी और लानती भी ठहरेंगे। तो तूने खुदावन के आगे तो तूने यानी बादशाह ने खुदावन के आगे आजिज़ी की, फरियाद की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। बादशाह रोया खुदा के आगे कि खुदावन हमें एक बार माफ कर दे। तो क्या किया? सो मैंने भी तेरी देख मैंने भी तेरी। ये नबिया उन लोगों से कह रही है जिनमें से मुंशी भी गया है। नबिया उनसे कह रही है कि बादशाह जो रोया है, जो फरियाद की है, खुदा ने वो फरियाद सुन ली। खुदावन फरमाता है, अब खुदावन फरमाता है इसलिए देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तू अपनी कब्र में यानी कब्र में सलामती के साथ उतार दिया जाएगा। बदल दिया होगा, सलामती के साथ उतारा जाएगा। और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पर नाजिल करूंगा, बादशाह तेरी आंखें नहीं देखेगी। बादशाह ने इस चीज, जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो क्या किया? बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने तमाम लोगों को जमा किया, लिखा है, और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। और बादशाह कहीं पर गया है, खुदावंद के जहां से वो किताब मिली है, बादशाह दोबारा वहां पर गया है। हालेलुया। सिर्फ इस चीज का दिल में खौफ है कि खुदावंद का अज़ाब हम पर ना आ जाए, क्योंकि उसने सुना था ये बातें तो तब हुई थी मूसा के साथ, इतनी नस्लें गुजर गई हैं, तो खुदा का अज़ाब कहीं नाज़िल ना हो जाए। वो डर गया, रोया, फरियाद की, अपने कपड़े फाड़ दिए और फौरन उसने उस चीज को अमल में लेके आया। और उसने क्या किया? नबिया के पास भेज दिया लोगों को कि जाओ नबिया से दरियाफ्त करो, नबिया से पूछो कि हम क्या करें। ये जो बातें हैं तो नबिया ने तमाम बातें बताई कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है। आगे बढ़ेंगे, अब इसने क्या क्या किया जी। और बादशाह खुदावन के घर हो गया जी, और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। उसने जो अहद की किताब खुदावन के घर में मिली थी जी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावन की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आईन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी है अमल करने के लिए खुदावन के हुजूर अहद बांधा। उसने इस बातों को जो सुना उस पर अमल करने के लिए खुदावन के हुजूर कुछ मांगा है। ये अहद बांधा है, खुदा के हुजूर उसने अहद बांधा कि जो खुदा ने तब मुकद्दस मूसा से कहा आज मैं उसको अमल में लेके आऊंगा। और ये मैं नहीं बल्कि लोगों से भी कहा, लोगों से कहा कि हमने ये काम करना है। 3 पर काम शुरू हो गया। और क्या किया? आगे कुछ चैप्टर में लिखा है कि जितने भी मंदिर थे उन सब मंदिरों को क्या किया? खत्म कर दिया, ढा दिया। उनकी जो मूर्तें बनी हुई थी, उनके देवी देवताओं की तमाम मूर्तें सब खत्म कर दी। और जो वो करते थे खुदा के खिलाफ जो काम था वो सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, ताकि खुदा का अज़ाब हम पर नाज़िल ना हो। आइए क्लोज करेंगे इस बात को, आगे देखेंगे। हम इसको देखेंगे 23 बाब की 20वीं आयत से। 23 बाब की 20वीं आयत, दूसरा सलातीन उसका 23 बाब और उसकी 20वीं आयत। जब सब कुछ खत्म कर दिया और उसने ऊंचे मुकामों के सब कायनों को जी जो वहां थे उन मजहबों पर कत्ल किया
और आदमियों की हड्डियां उन पर चलाई। फिर वो यरूशलेम को लौट आया। फिर वो वापस यरूशलेम को लौट आया। हुआ क्या आगे 21वीं आयत। और बादशाह ने सब लोगों को ये हुक्म और बादशाह ने सब लोगों को ये हुक्म दिया कि खुदावंद अपने खुदा के लिए फसह बनाओ, ईद बनाओ, जैसा अहद की इस किताब में लिखा है। और यकीनन जी काजियों के जमाना से जो इस्राएल की अदालत करते थे और इस्राएल के बादशाहों और यहूदा के बादशाहों के कुल अयाम में ऐसी ईद फसह कभी नहीं हुई थी। जो काम बादशाह ने कर दिया था कि पीछे ऐसी ईद कभी आज तक नहीं बनाए गए। जी यूसिया बादशाह के 18वें वर्ष ये फसह यरूशलेम में खुदावंद के लिए मनाई गई। जी मासवास के यूसिया ने जिन्नात के 25वीं आयत। और उसने पहले कोई बादशाह उसकी मानद नहीं हुआ। जो यूसिया बादशाह ने काम कर दिया था जो पिछले बादशाह को करना चाहिए था कि तमाम मंदिर ढा दे, लेकिन इसने जब ये सुना तो इसने वो काम किया। तो इसलिए बादशाह के हक में एक बात लिखी गई, कहा गया है जी और उससे पहले इस बादशाह से पहले कोई बादशाह उसकी मानिद इस बादशाह की मानिद नहीं हुआ था और ना जो अपने सारे दिल मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि अपने यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी ये 4 चीजें का जिक्र कि फकीर वो पूछता है कि अव्वल हुक्म कौन सा है। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही खुदा है। इस्राएल में पूरी दुनिया में कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है, कोई और दूसरा खुदा नहीं है। लेकिन याद रख, तूने अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदावंद से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। ये बात अब यहाँ पर आने वाली 25वीं आयत लिखा है और अपने सारे जी बेटा पढ़े जो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से जी मूसा की सारी शरीयत के मुताबिक खुदावंद की तरफ रजू लाया हुआ और ना उसके बाद कोई उसकी मानिद बरपा हुआ। ये अपने सारे दिल से बादशाह ने अपने सारे दिल से कलाम को कबूल किया और इसका दिल फौरन नरम हो गया। और जो रास्तबाज होते हैं वो उनका फौरन दिल नरम हो जाता है। जो खुदा की तरफ नहीं होते, जो रास्तबाज होते उनका दिल मेरा पत्थर दिल रहता है। जितनी भी अच्छी बातें करो, उसकी जितनी भी तारीफ करो, अगर उसका दिल पत्थर दिल है, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, नरम ही नहीं होगा। आइए फिलिप्पियों की किताब में हवाला मैं चाहता हूँ पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की किताब इसका 4था बाब, बड़ी अहम बात। फिलिप्पियों की किताब उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत। बाइबल का दुश्मनी का है तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर क्या हो? जाहिर हो। क्यों जाहिर हो? क्योंकि खुदावंद क्या है? खुदावंद करीब। खुदा ने जैसे मूसा को वो बातें लिखवाई और उसने कौम इसराइल से की, हैकल के अंदर वो तवारीख की किताबें मिली हैं और वो बादशाह तक पहुंची, बादशाह ने सुनी। आज वही बातें आप तक पहुंच रही है कि आपने भी अपने सारे दिल से उससे मोहब्बत रखनी, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से। यही चीजें हैं जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, एवं इंसान होता है। ये खौफ जो है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है दुनिया में। क्या चीज? खौफ। मैं अपने मसीही भाई कामरन मसीह बेटी का जिक्र करूंगा। अगर उनके दिल में खौफ ना होता, अगर उनके दिल में खौफ ना होता
तो वो इंडिया जाते, और अगर खौफ होता तो क्या इंडिया जाते? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मसीही भाई के दिल में खौफ नहीं है, वो बेखौफ है। इसीलिए तो अपने मुल्क को बचाने के लिए वो हिंदुस्तान में जाता है। ये जमीनी खौफ नहीं चाहिए, हमें खुदा का खौफ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो खुदा का खौफ होता है, उसकी वजह से पूरी कौम बच जाती है। ये खौफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन खुदा का खौफ होना चाहिए। इब्लीस का खौफ नहीं होना चाहिए। इब्लीस का खौफ तो आपके घर में भी आपको खौफ लगेगा, किसी का दूसरे का घर छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल है कि अपने घर में भी खौफ लगे? लेकिन ये खौफ चीज ही ऐसी है, इस खौफ को अगर हटाना है तो अपने सारे दिल, जान, अकल, ताकत से अपने खुदा की इबादत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाए, खुदा आज के कलाम को सब बड़ी बरकत। आइए सब